1944th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnawa Boutique. A big thank you to Stylix Kitchen and Wardrobes, Anjani Exotica Mihan, We Herbs, and also a big thank you to you who watch my show, like my show, share my show. हमारी आज की जो मेहमान है, शी इज मास्टर ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ ऑल, है ना. वो कहावत जो है वो बदलने का वक्त आ गया है, एज राइटली सेड बाय द लेडी हु इज जस्ट सिटिंग द अदर साइड ऑफ द कैमरा. एंड शी इज अ फैशन डिजाइनर फॉर पास्ट 13 plus years. She's a great chef at home, but now professionally also, now she's working for her cafe, newly launched cafe at, in east of Nagpur. And most importantly, she is a mother of a 5-year-old child and helping a lot of ladies, women grow in life. Please welcome my guest today, my women of the year. Please welcome Mrs. Fatima Saifi. Hi Fatima. Hi, hello. Welcome to Raj Ki Baat. Thank you so much. First of all, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना वक्त निकाल के आज हमसे बात करनी है. अपनी privilege and honor to be here. अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए कहाँ से शुरू करें? फातिमा प्राउड नागपुरकर है या नहीं है? बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा. Yes. You love your city. I love this city. I didn't wanted to leave this city. Yeah, and that's the reason you got married to Juzer sir. Yes. I'm born, brought up, studied, delivered everything in Nagpur. Why, why did you choose Nagpur? I mean, really would like to know why Nagpur. I did not choose Nagpur. Nagpur chose me. My mother, you were born here. Yes, I was born here. My mother got married in Nagpur, and since then it's been like 34 years. I'm here. So when जब छोटी थी कौन सी स्कूल गई, थोड़ा बताइए ना अपने बारे में. I went to St. Joseph Convent. शादी से पहले क्या नाम था फातिमा का? फातिमा का नाम शादी के पहले ही फातिमा सैफी था. So the reason being I gave you this name Fatima Saifi because mostly everyone know me by Fatima Saifi. They mostly call me या तो सैफी या तो फातिमा सैफी. So my name after marriage is Fatima Juzer Hussain. And my brand name is also Fatima Saifi Designer Label. So नागपुर में सभी मुझे फातिमा सैफी के नाम से जानते हैं. That's why I gave you that name. So I was schooling done from St. Joseph Convent. And then after that college, I did BCCA first from Centerpoint College. And that is known as City Premier College now. Now. Yes. And final year में ही I knew कि after final year शादी के proposal चालू हो जाएंगे और शादी करनी पड़ेगी, and I didn't wanted to do that. And I always had this knack for fashion and designing, and I wanted to do fashion designing. I chose BCCA just because सब लोगों को कैसे लगता है कि फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, हमें पढ़ाई नहीं करनी है इसलिए आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो. So it was my decision to enroll in fashion designing in my last year of BCCA, so that I get that 2 years of extra studying and no marriage. So I did my fashion designing from INIFD Ramnagar. ये एक मिनट मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर. ये जो फैशन डिजाइनिंग करने का जो लड़कियों में होता है, ये इंटीरियर डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनिंग, ये एक कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसे एक समय पर ये इस तरीके से देखा जाता था कि बेटा कुछ और नहीं है करने के लिए तो ये कर लो, है ना. लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है, आज चीजें बहुत अलग हैं. या प्लीज. So I wanted to do fashion designing not as a profession but out of passion, because since childhood it was there in me. I look up to my mother for that. So back then the market was not very open and हमको exclusive चीजें नहीं मिलती थी नागपुर. So my mother used to travel a lot, so she used to get fabrics from Mumbai, Surat and different parts of the country, and वो घर पे लाके फिर उसको sell करते थे. So I have seen that all what she used to do. So the liking towards fabric, texture, color came from that. I tell you something. I should travel with my mother.
I also used to travel with She used my to do mother. the same thing. Yes. She used to get these saris. We used to go to Surat. Okay. We used to go to, Baroda. We used to go to Ahmedabad. We used to buy these saris. Also Kolkata. And get it here in Nagpur. And all these aunties used to come at home and then they used to buy it. Yes. So my Yeah. mother also used to do the same thing. She used to take me to Mumbai whenever she used to travel. And मुझे आज भी मुंबई की ऐसी ऐसी places पता है जो लोगों को पता नहीं है. Hmm. So because I had traveled with her बिल्कुल. is what my And then knowledge I used to comes always, from. you going with your mother, Huh. I can really relate to it because, the mother needs, the daughter to be there and learn, take the legacy of Yes. these things to next level, things like that. But I used to ask my mother, why me? I mean, I am not even interested in, these things. So she used to always tell me that, I need a coolie with me. So, your dad is really busy. So you are the one. So, yeah. But one should have a knowledge of everything. Everything. No, I mean, definitely. Yeah. तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फैशन डिजाइनिंग करी, लेबल Fashion designing लेबल कब बनाया? उसके बाद I worked for 6 months under a men's wear brand. There I realized like internship किया हम लोगों ने वहां पर me and my friend, but we did not get to learn a lot of things over there. And meanwhile working there only, I started working as a freelancer also. So the first orders that I got was from my friends and family, and then that spread as a word of mouth, and वहां से मेरा काम चालू हुआ था. I used to work as a freelancer for like say 2 years. I used to visit people's houses and take measurements, take fabric samples to get it selected. Then फिर टेलर घर पे आता था, स्टिचिंग के लिए लेके जाते थे, and then डिलीवर करने के लिए वापस मैं जाती थी. So I did that for a broader period of 2.5 years, and that actually gave me the experience, hands-on experience on one-on-one client interaction. And my knowledge and my precision comes from that experience. But then जब हम इस particular field के बारे में बात करते हैं, फैशन डिजाइनिंग के बारे में, there are very few fashion designers in Nagpur who have actually become successful. नहीं तो लोगों ने जो रास्ता अपनाया है वो खुद के बनाए हुए कपड़े या खुद की लेबल के कपड़े का एक फैशन वॉक करवाया, बड़े बड़े लोगों को पहनाने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें हुई है. बट बहुत कम ऐसे लेबल सक्सेसफुल हुए. क्या वजह हो सकती है सक्सेसफुल नहीं होने की? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. लाइक हमेशा आपका क्लाइंट सिर्फ बड़े लोग या नोन लोग नहीं हो सकते. आप उनको मोस्टली वो जो नोन और बड़े लोग हैं वो आपसे या तो फ्री में काम करवाएंगे, राइट, या तो कम पैसे देकर जाएंगे. बट असली मजा जो काम करने के लिए है ना, वो लेमैन लोगों के लिए जो आपको पहचानते हैं और आपके पास आते हैं. क्यों? क्योंकि आपके काम को जान के, नॉट बिकॉज यू वन सच बिग लेबल, बट योर वर्क स्पीक्स. So I have my client base not only from Itwari, because I reside in Itwari and my workshop is in Gandhi Bagh, but I have people traveling from across Manewada and Airport Road to me. Why? Because they've heard good things about my brand, about my stitching quality and everything, and my rates. So that's why they travel. वहां से Airport Road से इतवारी आने में 50 boutiques है. Why don't they go there? And why they come to me is because the work I give. Nowadays people carry those pictures and all and they give it to you and you can make we can whatever you. Yes. But that is what कि Pinterest पे, Instagram पे और models पे, actresses पे सब अच्छा लगता है. But वही फोटो लाके बताना कि ये मैं भी पहनूं और मुझ पे भी अच्छा लगे does not happen, because everyone has a different skin type, a different body type, and you should dress according to your body type. So a lot of people, my karigars also tell me, मैम वो आए बनाने बोल रहे बना दो ना, आपको क्या करना है. तो this is not what I do, because अगर बन के जा रहा है तो वो ऐसा जाना चाहिए कि वो उनकी बॉडी टाइप पे. भले हम उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं वो डिजाइन से, बट आई ट्राई एंड कन्विंस माई clients that this is what will look good on you. Don't go on the pictures. पर ये लेडीज में होता है क्या? मतलब मैन टू मैन अगर बात करें, मैन टू मैन, तो ये बहुत ऑनेस्ट हो जाते हैं लोग कि चाचा ये मत पहनो, ये नहीं लगेगा आप पे बढ़िया. बट क्या लेडीज में होता है? डू यू एक्चुअली, I actually try to do that with my clients, and people trust me for that. People trust me for my design instinct. They're not offended.
they are not offended. A lot of people think, but over the period of time I try to explain to them कि बन के आएगा, बुरा लगेगा तो आप ही मुझे बोलोगे कि आपने गलत बना के दिया. It's not what I would like to take it on me, because Right. I was going to explain you, I was explaining it to you कि आप ये मत पहना, ये नहीं अच्छा लगेगा. So now I have that bond with my clients who like trust me. Most of the clients of mine are from out of Nagpur also, कि जिनके मेजरमेंट्स है मेरे पास. दे जस्ट गिव अ फोन कॉल, ये ओकेजन है, ऐसा बनाना है, कपड़ा भी तुम ले लो, डिजाइन भी तुम करके भेज दो बना के. सो दिस इज द ट्रस्ट दैट आई हैव मेड विथ माई क्लाइंट्स, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद देम वन ऑन वन. ऐसा नहीं कि मेरे पास स्टाफ नहीं है या मेरी असिस्टेंट हैंडल नहीं कर सकती, बट आई लाइक टू हैंडल माई क्लाइंट्स वन ऑन वन. एक्सक्लूसिविटी एक सर्टन चार्ज के साथ आती है, एक सर्टन amount के साथ में. Right. There is a, Yes. I won't say it as a penalty, but it is, an exclusive thing Yes. always comes with Yes. a cost. Cost. So how comfortable are ladies when it comes to paying these costs? So आजकल लेडीज में ये है कि हमने जो पहना है वो किसी और ने नहीं पहना होना चाहिए. So that is their thing. कि उसने जो पहना है वो हमने नहीं, वो आके डिजाइन चेंज करवा लेंगे कि कल शादी में गई थी तो सेम डिजाइन दिख गया था, मुझे चेंज करवा दो. So when something is going to be made just for you, so you have to bear that much of amount, because उतना हमारा भी टाइम इन्वेस्ट होता है इन डिजाइनिंग, इन प्रोक्योरिंग दैट फैब्रिक, दैट डिजाइन एंड माइन्यूट डिटेल्स कि आप सबसे अलग दिखो. I went to a college activity where I saw 5 guys and girls wearing the same t-shirt. Okay. They all bought it from Zudio. Okay. And I asked them, what's this all about? Do you have a band or something? So they said, no, we went, by ourselves. We did our shopping, but we end up, they were all from different streams of the college. Matching the same thing. हाँ, but they were wearing the same thing. So उन्होंने तो selfie ली, they celebrated that. But ये ladies में नहीं होता. No. They want exclusivity. Yes, they want it. वो बहुत कम ओकेजन रहेंगे जब आपको ट्विनिंग करना है अपने हस्बैंड के साथ या किड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ, बट नॉट एवरी टाइम दे वुड नॉट वांट कि मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे जैसा सेम गारमेंट किसी और ने पहना है. सिस्टर्स ब्रदर्स सिस्टर्स आर डूइंग, दैट इज फाइन, बट नॉट पीपल whom you don't know. And you design clothes for men also. Men, women and kids. Okay. Yes. And how have men appreciated your work? So men, like 20% of the work I do is for men's wear, not much. But वो भी आता वैसे ही है कि ब्राइडल वेयर आ रहा है या घर में शादी है तो the men's come into action with us. So they've always appreciated. Now we have recently ventured, from past 2 years we have ventured into uniform designing as well. So we are doing uniforms for like a renowned brands of Nagpur, few renowned brands of Nagpur. और ये जो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, Right. एकदम से ये जो दिशा है, हाँ. ये खाने की तरफ कैसे चली? अब खाने की लाइकिंग भी बचपन से ही थी, मम्मी के साथ रह के ही. लाइक आई हैव नॉट टेकन एनी क्लासेस और समथिंग, बट देख देख के ही सीखा है जो भी सीखा है, फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड नाउ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम. So this was basically a retirement plan. So I have one daughter. So I and my husband always talk. उसकी शादी के बाद we'll go to some aloof place and we'll just start a food joint and we'll relax and chill. So this was our retirement plan, but God had something else planned for us, and it came to us as an opportunity, and we thought of taking it. So we have recently launched a cafe in East Nagpur. Called? That is called Voyager Delight. And that's a pure vegetarian Pure cafe. vegetarian cafe and quick bites. So the name suggests Voyager Delight, and it is situated on a petrol pump. So we have specialty coffees and all quick bites. Okay. And it's been just 2 months. 2 months, yes. And how's the response? It's going good. Touch wood, it's going good. Yes, amazing. And लोग CCD जाते हैं, आप CCT जाती हैं. Yes. So what's that connection called? So it is CCT is basically corporate coffee table. The founder Kiran Kotwani is watching Kiran you. That's the Kotwani. reason I'm asking. Yes, Kiran. So founded by Kiran Kotwani, she is doing an amazing work of
uplifting women entrepreneurs in Nagpur and working for them, helping them grow personally and professionally both. So I've been part of CCT since like 1.5 years now. From its first meeting till now, I've been there on the head table for 2 tenures now. I am the master trainer with them. So it is a great platform for ladies who want to come out of their shell and want to explore the world. सुपर। ये जब आप अपनी मदर के साथ चीजें सीख रही थी, उसके बाद जब फैशन डिजाइनिंग किया, इंटर्नशिप करी, और ये जब अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रही थी, जूजर कहाँ टकरा गए आपको? जूजर इतवारी में ही टकराए। सो वी मेट एट अ कॉमन फंक्शन। वहां पे हमारा मैरिज प्रपोजल स्टार्ट हुआ एंड it was a normal arranged marriage because I didn't wanted to get married because I didn't wanted to go away from my parents. So that was the reason कि मुझे अब्रॉड में किसी से शादी नहीं करनी थी तो नागपुर वाले से ही किसी से करनी थी एंड जूजर इज द लकी गाय। लकी गाय, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा, आपका परिवार आपके काम को किस तरह से देखता है? डू दे, बिकॉज अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि मेन गेट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, मैं डिफरेंस नहीं ला रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन men get a lot of appreciation, but when it comes to women getting appreciated at home from mother-in-law, father-in-law, husband especially kids, right, in-laws, तो वो appreciation बहुत कम देखने को मिलता है। I am very blessed that way. मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे होल्ड बैक नहीं किया। दे लेट अस फ्री एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। उनकी ही वजह से आज आई एम हियर बिकॉज द सपोर्ट एंड द पावर दे गेव अस कि आप अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स आई एम सिटिंग हियर टुडे एंड आफ्टर मैरिज माई इन लॉज एंड माई हस्बैंड गेव मी इमेंस सपोर्ट। आज उन्हीं की वजह से आई एम, because my mother-in-law, my father-in-law and my husband takes care of the whole household work and everything. That is the reason I can step out of my house and work. I'm mostly not there, sometimes not there 10 hours. मैं घर नहीं आती हूँ। My mother-in-law looks after my daughter also. So I'm blessed that way that they are there to support me at the back end so that I can work. ये सास बहू प्रॉब्लम सिर्फ एकता कपूर के सीरियल्स में है ना, बाकी लाइफ में उतनी नहीं है? उतनी नहीं है, होती है। हाँ। हमारे क्लैशेस तो हमारे पेरेंट्स के साथ भी होते हैं, तो इन लॉज के साथ भी होना इज वेरी नेचुरल, बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती है कि आप आपका सब कुछ छोड़ के घर में बैठ जाओ। मतलब मैं ये काम मैं नहीं करूंगी, नहीं, ये नहीं होता है। नहीं, ये सब नहीं होता है। इट इज बेसिकली कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन प्रॉपर करो तो चीजें ठीक रहती है। अब चूंकि कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को, विवाह को? 8, अभी फरवरी में 8 years 8 years हो जाएंगे। सो पास्ट 8 years आई एम श्योर जूजर भाई ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। आपने उनसे क्या सीखा? मैंने उनसे क्या सीखा? पेशेंस। He is a person with a lot of patience and I am very impulsive, like short-tempered, impulsive, but he's always stood by me. He's always there. I've been to my lowest phases also in these 7 years, but he has been like a rock with me कि मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। So he is very steady for me. तो जब आप लोग कार में जाते हैं, कोई कट मार के जाते हैं, तो पहले गाली कौन देता है? आप? मैं उसको भी देती हूँ, इनको भी देती हूँ, आप नहीं देख के चला सकते। चलिए, पत्नी का खौफ हर घर में है। मैं समझता हूँ सिर्फ मेरे घर में है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं वक्त के साथ ना there's a lot of change in the society, specifically for girls, women out there. What's your thought for girls who don't want to get married early, want to focus on their careers? What's your thought over it? So it depends from person to person, I feel. मतलब ऐसा नहीं है कि आप जल्दी शादी करने के बाद आपका करियर खत्म हो जाता है, या लेट आप करियर पे फोकस रहो तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी। इट इज ऑल रिटन इन योर डेस्टिनी, राइट? आप में वो विल पावर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। यू शुड बी एबल टू टेक दैट डिसीजन। इवन इफ यू गेट मैरिड अर्लियर एंड यू हैव योर किड इन द फर्स्ट ईयर, 21-22 में ही हो गया, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेरी गुड कि चलो
यंग एज में बच्चा हो गया, नाउ यू कैन फोकस ऑन योर करियर. सो everything has its own pros and cons, so I would not like to support either of the things. Like, एक I may समय support both the things. एक समय था जब हम फैमिली कोर्ट में वीराना देखते थे, काफी बहुत Okay. कम लोग दिखते थे. Okay. पर अब वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि फैमिली कोर्ट में बहुत सारे लोग हाँ. देखने को मिलते हैं Right. जो अपनी शादी को तोड़ने के लिए आए हैं. कोई भी रिश्ता जब टूटता है तो तकलीफ होती है, लेकिन ये जो नंबर बढ़ता जा रहा है भारत जैसे देश में, जहां पर we look at marriage as an institution, Right. and there are a lot of words which are around this world of marriage. What's your opinion? What's your thought? Why the number of divorces are increasing? See, पहले इतना एक्सपोजर नहीं था वर्ल्ड में, ठीक है. सो लाइक डिवोर्स वुड हैव बीन द लास्ट थिंग लोग सोचते थे. अगर उनको नहीं भी अच्छी लगती थी वो शादी में कुछ प्रॉब्लम्स भी होते थे तो दे यूज टू ड्रैग दैट मैरिज के, नहीं बच्चे हो गए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम इस शादी के बाहर जाएंगे तो हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं थी उतनी, तब तो हमारा ख्याल कौन रखेगा, पेरेंट्स पे जाएंगे तो बर्डन हो जाएगा. बट नाउ द गर्ल्स इवन द बॉयज आर वेरी करियर ओरिएंटेड. वो लोगों ने अपने आप को सेट करा है फाइनेंशियली ऑल्सो. सो उन लोगों के लिए अभी ये डिसीजन लेना बहुत ईजी हो गया है कि अरे डिवोर्स हो भी गया तो आई एम देयर, आई कैन फुलफिल माई ऑल माई ड्रीम्स. सो इसीलिए भी वो रेट्स आई थिंक आर गोइंग अप हाई. IVF is now in the scene. If Right. Women are not able to Yes. conceive naturally, IVF supports them. This is the new technology which is there. But then, what's your thought on child adoption? It is a great thought. Like everyone is telling me ke plan your second child, but for people like me, I have my medical issues also. Like we are truly blessed कि हमारा जो फर्स्ट बेबी हुआ वो भी हो पाया, बिकॉज माई मेडिकल कंडीशन वॉज वेरी बैड आफ्टर मैरिज. सो कंसीविंग फॉर द सेकेंड टाइम इज what we are thinking on के physically I will get very drained off. But for people like me, adoption is a very good option. You are giving life to someone, you're filling colors in someone else's life. Absolutely. जिनकी black and white life हो गई है. So I think it is a great initiative of adoption if you are not willing to have your own child. जिस हिसाब से परिवार में हम पुरुष के साथ महिला भी घर से बाहर निकल रही है, काम कर रही है, जिंदगी बना रही है, अपनी एक करियर बना रही है, आगे बढ़ रही है, पर आज भी ऐसी कई सारी टैलेंटेड एडुकेटेड लड़कियां हैं, लेडीज हैं जो अभी भी चार दीवारों में अपने आप को कैद रख रही है. मैं चार दीवारें, घर की चार दीवारें नहीं कह रहा हूँ, मैं मन की चार दीवारों में कैद करके रखनी है. व्हाट्स योर सजेशन टू देम? तोड़ दो वो दीवारें. Yes, तोड़ दो वो दीवारें, because it just take one single step कि आप अपने आप को पहचाने और आप में क्या अच्छा है. जरूरी नहीं है हर काम घर के बाहर जाके ही होता है, घर से भी बहुत सारी चीज होता है. एंड आपने सीसीटी का नाम लिया तो सीसीटी में ऐसी कई लेडीज है जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है. लाइक वी हैव 160-year-old लेडी हु इज मेकिंग स्वीट्स एंड डिलेक्टेबल स्वीट्स यू विल नॉट गेट एनीवेयर इन नागपुर. बड़े बड़े ब्रांड्स भी वो चीजें नहीं बना पा रहे, बट शी इज डूइंग इट बिकॉज आउट ऑफ पैशन. उनको पैसों की कमी नहीं है, बट शी इज डूइंग इट आउट ऑफ पैशन बिकॉज शी लव्स इट. सो वो जो हम डर रहता है ना कि लोग क्या कहेंगे या हम ये उम्र में कैसे काम करेंगे या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इट इज जस्ट आपको सिर्फ एक पुश चाहिए या एक हेल्प चाहिए, और हेल्प मांगने में डरना नहीं चाहिए कि हमें आपकी जरूरत है, प्लीज हेल्प मी. लोग ये चीज बोलने में डरते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी, बट आई थिंक वेन एवर यू नीड हेल्प यू शुड आस्क फॉर इट. अब आगे क्या फातिमा क्या करना चाहती हैं? क्या क्या चीजें हैं बकेट लिस्ट में? अब बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो बकेट लिस्ट में, बट फिलहाल जो अभी बकेट में आ गया है हमें उसे संभालना है, स्टेडीली आके लेके जाना है. इंशाल्लाह लेट्स सी व्हाट्स गॉड्स प्लान फॉर अस इन योर फ्यूचर. कौन सा ऐसा गाना है जो फातिमा के दिल के एफएम में मैं रेडियो जॉकी रहा हूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हर किसी का दिल एक एफएम चैनल है और हर वक्त हर किसी के दिल में कोई ना कोई गाना बजता रहता है.
तो कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल के एफएम में हमेशा बजता है और वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करता है? तो व्हेनेवर यू आर लो, एक गाना आपको सुना दे कोई, तो थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाए। वैसे तो आई लव सिंगिंग एंड हियरिंग सॉन्ग्स, बट अभी कुछ भी स्ट्राइक नहीं होगा क्योंकि यहाँ बैठी भी हूँ। बट किरण कोटवानी का नाम लूंगी एंड उनका एक फेवरेट सॉन्ग है आई एम अनस्टॉपेबल वाला। सो वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमेशा बजाती है हमारी मीटिंग में ताकि वी विल गेट मोटिवेट। सो आई रियली लाइक दैट सॉन्ग। अब अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, फातिमा सैफी, है ना, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद रखें? आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ एज अनस्टॉपेबल। ऐसा नहीं है कि मैंने डाउनफॉल नहीं देखा है, या हमेशा ऊपर ही 7 साल में या 13 साल में मैं हमेशा ऊपर ही गई हूँ। बहुत बार टूटी हूँ और बहुत बुरी तरह से भी टूटी हूँ, बट दैट विल पावर दैट आई हैव इन मी इज के टूटने के बाद, मतलब 2 स्टेप पीछे जाने के बाद आई टेक अ जंप। सो दैट इज देयर इन मी एंड दैट आई लर्न फ्रॉम माई मदर दैट आपको हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। आप रुक जाओ बट चलना मत छोड़ो। आप ऐसे ही अनस्टॉपेबल रहें। इंटरव्यू के पहले जब आप और मैं चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आपके साथ चर्चा नहीं हुई। अमूमन कोई भी सवाल पे चर्चा नहीं हुई, बस आपके बारे में चर्चा हुई। और आपसे एक निवेदन है, कभी किसी से ये मत कहिएगा कि आई एम नर्वस, बिकॉज यू वर नॉट नर्वस इन द एंटायर इंटरव्यू। यू वर मेकिंग मी नर्वस विथ योर आंसर्स। यू वर सो prepared, you were so ready, and Thank that you so much. is I think this is the perfect quote which My goes with you. husband said the same thing. This is you are unstoppable, and I'm sure your cafe also becomes a great success. People Thank come you so there, much. people love the cafe, and people give you a lot of orders, and get their costumes and dresses customized by you. And looking forward to get associated Looking also. forward for you to come. But I need a Soon. promise from you that you make RKB t-shirt. Of course I will. है ना, you'll design for me. है ना, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. It was a privilege to be here. Honor. Thank you so much. Thank Super. मुलाकात हुई with a fashion designer, a cafe owner, a lady with this unstoppable thing in mind and in karmas also. What an interview, Fatima Saifi. After a very long time I've met a lady, honestly, जहाँ कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आई एम श्योर वो होंगे कहीं ना कहीं. हर किसी की जिंदगी में वो ऑब्स्टिकल आता है जहाँ पर हम कहीं ना कहीं कुछ वक्त के लिए अटकते हैं. लेकिन फिर आप एक टाइगर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लें. लोग कहते हैं कि एक टाइगर जो है, जब वो 4 कदम पीछे लेता है तो वो इसलिए लेता है क्योंकि एक बड़ी छलांग वो मारने वाला होता है. और सबको पता है टाइगर हमला नहीं करता, टाइगर खाना नहीं लाता, कब्ज के लिए टाइग्रेस लाती है. तो ऐसी टाइग्रेसेस की जो कहानियां हैं, जब वो अपनी कहानियां बताती हैं तो वो इंस्पायर करती है. वाणी और विचार जो है वो हमारी अपनी खुद की कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं. उसकी जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसके उतने अच्छे दाम मिलेंगे, ऐसा हर कोई कहता है. पर फातिमा सैफी जैसी लड़कियां जब महिलाएं जब समाज में आती हैं, इस किस्म का कॉन्फिडेंस रखती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इम्प्रेशन है, एक रेप्लिका है, एक स्टेटमेंट है जो उनके परिवार का स्टेटमेंट है. ये बाहर जाकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी स्ट्रेंथ के साथ आगे कैसे बढ़ पा रही है. बहुत सारी लेडीज विमेन ऑफ द ईयर अगर इस वक्त देख रही हैं, और जो देखेंगी हजारों लेडीज, आप शायद ये सोच रही होंगी कि फातिमा सैफी इतनी तैयार कैसे. ये शायद इसका धन्यवाद आपको देना होगा फातिमा सैफी के पेरेंट्स को. आपको धन्यवाद देना होगा उनके हस्बैंड को, उनकी मदर इन लॉ को, उनके परिवार को,
जो उन्हें इतनी स्ट्रेंथ देते हैं कि आप बाहर जाइए। देखिए, अच्छी बैकिंग रहेगी तभी हमारे देश की महिलाएं घर से बाहर निकलकर वो कर पाएंगी जो शायद जिसकी कल्पना हम करते हैं, और जिसकी कल्पना 1947 में जो लोगों ने आजादी दिलाई वो करते थे कि इस किस्म का भारत होगा, और जिसका डर पूरी दुनिया को है। दुनिया को किस बात का डर है भारत से? इस बात का डर है कि पुरुष तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस दिन महिलाएं भी बाहर आ जाएंगी तो वो दुनिया का सबसे टॉप का देश बन जाएगा। उम्मीद है कि ऐसी और महिलाएं बने, फातिमा सैफी हर घर में पैदा हो, जहां पर वो अपने घर का नाम, अपने परिवार का नाम इसी तरह रोशन करें। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में एक बिटिया है जो अपनी जिंदगी अपने उसूलों पे लेकर चलती है, अपनी जिंदगी में वो हर सक्षमता के साथ आगे बढ़ती है, जिससे वो अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करती है, तो समझिए वो फातिमा सैफी बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।